पढ़ना नहीं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन उनका चेंज नहीं हो रहा, दे आर ऑलरेडी इन एक्सेस, है ना। तो जो हम एग्जाम्पल मैंने लिया था कि इफ यू आर टेकिंग FeCl3 SnCl2 और हमारे पास सपोज करो इफ यू आर टेकिंग द 4 reactants are here, and if you want to find the order of the reaction with respect to the only FeCl3, then you have to take FeCl3 in a normal quantity and other reactants you will take in the excess quantity, right? So Yes, ma'am. when you will find the order of reaction in this way, then this order of reaction will be only for this FeCl3. And after that, in the second step, what we will do, if we are going to isolate this SnCl2, so then rest of the reactants will be taken as excess Excess. quantities. Okay? Then after that, you will what you will do, you will add the orders of this FeCl3 and SnCl2. When you are taking FeCl3 in an excess quantity, you will find this is the first power of concentration of SnCl2. Means यहाँ पे SnCl2 का order of reaction क्या हो गया? First, one order हो गया, ठीक है। जब आपने नेक्स्ट में One. एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया, then 2 plus 1 will be equal to 3. Two. Yeah, and if you are taking A, B, C, D, 4 reactants are here, है ना। In the same way, then you have to isolate one by one. A को आपने isolate कर लिया, then B, C, D will an excess quantity. If you are going to isolate B, then A, C, D will be taken an excess quantity, है ना। And if you are going to isolate C, then A, B and D you will take in an excess quantity. ये चीज है, ये ध्यान रखना। It is not necessary that you are taking only 2 reactants. Maybe just 3 or 4 reactants. Then what? How will you find the order of reaction? Right. So in this way, hence the order of reaction of the above reaction is 1 plus 2, that is 3. Third order reaction. Is it clear to all of you? What is the meaning Yes. of Yes. method? Okay. And you have done the graphical method also. No? In the graphical Yes, ma'am. method, what you did? Graphical method में आपने क्या किया था? बताइए जल्दी से। In graphical method, ग्राफ प्लॉट किया था फर्स्ट ऑर्डर का और जीरो ऑर्डर का। मैं एक में डिपेंडेंट करता था, एक में डिपेंड नहीं करता था। in a graphical method, you will plot, you will draw a graph. Then, if you are going to make the first order of reaction, then log A minus x. Log A minus x values on plotting against time t value gives a straight line. मतलब means you have to get a straight line. अगर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को प्रूव करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? लॉग A माइनस एक्स और t के बीच में ग्राफ को बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि आपने देखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A माइनस 2.303 अपॉन के log A minus x, where t is proportional to log A minus x. Means you have to plot in between two, p and log A minus x, and this is the proportional quantity, so the graph will be go on straight line ऐसे। p increase होगा तो log A minus x भी increase होगा। अगर ऐसा हो रहा है then आपका जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हाँ वो फर्स्ट ऑर्डर का ही है। अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, दैट मीन्स इट्स नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। and the second order reaction, t is equal to ak into a upon a minus x। इसका मतलब t is proportional to 1 upon a minus x। यहाँ पर log a minus x से proportional था, यहाँ पर 1 upon a minus x के। इसका मतलब ग्राफ किसके बीच में बनेगा? इसके और इसके बीच में। अब जब बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आती है, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज द ग्राफिकल मेथड। और ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया था, ये वाला हाफ लाइफ मेथड भी। और दिस इज द integration method by application of formula. So you all have done all these methods, how to identify the order of reaction, because order of reaction is the experimental quantity, experimental value
but the molecularity of the reaction, you can, it is a theoretical value, right? I think you have all discussed the difference between the molecularity and order of reaction. Got you clear discuss? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Now, as a new question, write the question right now. So, okay, I'm going to take a pic of that question and I'm going to send, right? मैं सेंड कर देती हूँ आपके व्हाट्सएप में इसको बोलने में Yeah. Check your WhatsApp. Yes, ma'am. देख लिया, आ गया. आ गया? Okay. Yes, ma'am. There is a question. All you have got the question, no? From the following data, show that the decomposition of hydrogen peroxide is a reaction of the first order. This time is 0, 10, 20, and volume in ml is 46.1, 29.8, 19.3, where T is the time in minutes and V is the volume of standard KMnO4 solution required for the titrating the same volume of the reaction mixture. Yes, कल शायद आप ही क्लास एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था ना कि मैम अगर हमारे पास इनफाइनाइट की वैल्यू नहीं हो तो हम कैसे करेंगे. आप ही क्लास में बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि इसी का बच्चा था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यस मैम वो हमें पूछ रही थी. हाँ, तो देखो यहाँ पे इनफाइनाइट की वैल्यू तो नहीं है यहाँ पर. अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ऐसे केसेस में जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये जो क्वेश्चन है, ऐसे केसेस में आप क्या फॉर्मूला लगाओगे वो आप लिख लीजिए. यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा बच्चों. अभी फॉर्मूला आपका क्या था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या फॉर्मूला होता था हमारा बताइए. 303 upon 4 2.303. हाँ, 2.303 फिर log a upon a minus x. This is the formula, right? But now Ye- but now there is not the value of a or a minus x की value नहीं है. In this case, what you will do? एक या फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा. राइट द फॉर्मूला 2.303 upon 2 upon t, 2.303 upon t log v naught upon vt. v naught upon vt. v naught का मतलब क्या हो गया? इनिशियल टाइम. Initial volume. जीरो. तो जीरो था टाइम एट द टाइम ऑफ टी. जब जीरो था तब वी कितना है, दैट इज वी नॉट. ठीक है. और वी टी तो आपको तो पता ही है, हाथ मिनट्स में देखते जाएंगे हम लोग. तो 2.303 अपॉन टी लॉग वी नॉट अपॉन वी टी. You have to find, this is the first order reaction. वी नॉट अपॉन V naught upon Vt. V naught upon Vt. V naught upon V naught मतलब at zero time, जब हमारा टाइम जीरो था तब कितना वॉल्यूम था. अब टू ही वैल्यूज है 10 minutes and 20 minutes. Both the values should have come in a constant में ही आना चाहिए. मैम फर्स्ट स्टेप में तो वी नॉट अपॉन वीटी करेंगे.
उसके बाद वो इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगेंगे ना सर? नहीं, इन्फिनिटी वाले क्यों लगाओ बेटा? इन्फिनिटी यहाँ पर है ही कहाँ यहाँ पर? आप 10 मिनट्स के लिए निकाल लो, 0 मिनट के लिए भी निकाल सकते हो, 10 के लिए निकाल लो, 20 मिनट्स के लिए निकाल लो, वैल्यू जो आपको कांस्टेंट आनी चाहिए। मैम 0.043। यस, किसके लिए बेटा? मैम 10 के लिए। 10 मिनट्स के मैम लिए। 10 के लिए 10 के लिए कितना आया? मैम 0.04। 0.04 बेटा, 4 डिजिट्स तक निकालो क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू है ना। हाँ, 0.0436 बच्चे ने आंसर दिया। 0.035 0.0435। से 20 की आ रही है। क्या मैम? हाँ, 0.043। अवनींद्र तिवारी ने बताया है 0.0435 फॉर 20 मिनट्स। वेरी गुड। एंड फॉर द 10 ये मिनट्स, तो 20 के लिए आएगा ना 0.0435। हाँ 35 वाली जो वैल्यू है वो 20 मिनट्स की आ रही है। 10 के लिए कितनी आ रही है? 0.0436 पर मिनट। यस मैम। 0 के लिए मत निकालो ना, 0 मिनट के लिए मत निकालो, 10 के लिए निकालो, 20 के लिए निकालो। टेन के लिए निकाला 0.0436 पर मिनट एंड 20 के लिए आया 0.0435 पर मिनट। ठीक है, क्या माइक इज नॉट वर्किंग बच्चे? मैम वो बता रहे हैं कि उसका नहीं वर्क कर रहा है। अच्छा, आपका नहीं वर्क कर रहा है, मुझे लगा कि मेरा नहीं कर रहा। मेरी वॉइस तो आ रही है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, तो अवनींद्र तिवारी ने बिल्कुल सही आंसर देना चाहिए। तो अभी क्या हो गया, ये वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब क्या लिखोगे? दस द वैल्यू ऑफ k comes out to be nearly constant, hence it is a reaction of the first order. जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैम बोलिए। मैम आपने कहा था कि जब इन्फिनिटी दिया होगा तब वो वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब वी नॉट अपॉन वी वी नो वी इन्फिनिटी अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। तो मैम इन्फिनिटी और जीरो दोनों दिए तो इनिशियल में तो जीरो वाला फॉर्मूला लगेगा, बाद में तो इन्फिनिटी वाले लगेंगे ना। आप उसका भी लिख लो, उसका भी क्वेश्चन लिख लो। इन्फिनिटी और जीरो वाला क्या क्वेश्चन लिख लो, बोलूं मैं? मैम हम उससे भी बात कर रहे हैं, आपने वही तो दिया अभी। नहीं, ये तो सिर्फ इसमें क्या था, सिर्फ जीरो की वैल्यू थी, इन्फिनिटी की वैल्यू कहाँ थी इसमें? जो क्वेश्चन मैंने बोला है देखो, उसमें इन्फिनिटी कहाँ है? मैम क्लासरूम वाला क्वेश्चन ही कह रही ना आप? नहीं, अभी अभी नहीं। जो मैंने तुमको दिया है, अभी जो बोला तुम लोग कर रहे हो, जिसका आंसर निकाल रहे हो, व्हाट्सएप में भेजा ना मैंने। अभी मैम ने एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा है, वो देखो। वो जो आप लोग कर रहे हैं उसमें इन्फिनिटी कहाँ है? क्योंकि सिर्फ जीरो है ना, 0, 10, 20 देखा आपने? सॉरी सॉरी दूसरा क्वेश्चन दे। हाँ, दूसरा भी कभी वाला था। मैम हो गया सब। हो गया? दोनों आंसर सेम आया। आगे यस मैम, जो दोनों। यस मैम सेम आएगा एक और दोनों। क्वेश्चन दे रही थी। हाँ, एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, मगर इसको होमवर्क के लिए रख लेना, क्योंकि टाइम टेकिंग होगा ना थोड़ा, उसको होमवर्क के लिए करना, उसको बताना कैसा फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा। ठीक है, थोड़ा अपने से भी सोचना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इन्फिनिटी Yes, ma'am. वाला लगेगा या जीरो वाला लगेगा। तो कुछ समझ में आएगा, जब खुद ही करोगे ना तो समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है।
question and giving a bit. Okay. Yes. Take the question. You all receive the question. यस मैम। है ना। अब ये है आज आपका होमवर्क का क्वेश्चन भी करना, क्योंकि इसमें आपकी देखो इंफिनिटी भी दे रखा है, जीरो भी दे रखा है। अभी सोचना कि क्या लगेगा, कैसा मैम है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर क्यों नहीं है? मैं तो बिल्कुल माइक के बिल्कुल पास में बोल रही मैम हूँ। क्लियर है। मैम कभी कभी आपकी वॉइस थोड़ी स्लो हो जाती है बीच बीच में। अच्छा, मैं ठीक है, मुझे शाउट करके ही बताना पड़ेगा इसका मतलब है। ओके, मतलब यहाँ मैंने आपसे ये बोला बच्चा कि इसमें देखो जो इक्वेशन मैंने आपको भेजा है उसमें इंफिनिटी भी है, जीरो भी है। अभी आपको देखना समझना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कैसे लगाओगे, क्यों लगाओगे। ठीक है, थोड़ा समझना, फिर मुझे बताना, इसका आंसर बताना। राइट, यस अब मैम। हम आगे बढ़े। ओके मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो ये Yes. सब में तो आप लोगों की हो गई। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट topic of the kinetics. I'm going to share my screen. Now, अभी शो हो रहा है, स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? तो मुझे बता सकता है? Ma'am, minimum amount मिनिमम एनर्जी रेड required in a reaction to reach the transition state. हम्म? Ma'am, minimum amount of energy required in a reaction to reach the transition state. मतलब मैम रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है। ठीक ठीक, और कोई? मैम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to collisions of molecules and atoms. ठीक, वेरी गुड। देखिए, अब यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन थ्योरी। According to collision theory of reaction rates, the rate of reaction is governed by two factors. कौन कौन से वो two factors हैं जिससे कि हमारा रिएक्शन रेट गवर्न हो रहा है? फर्स्ट आता है द टोटल नंबर ऑफ collisions between the reaction particles. The total number of collisions between the reaction particles. इतना ज्यादा collisions होंगे ना, उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्शन होगा, प्रोसीड होगा। कोलिजन्स नहीं होंगे तो क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होंगे क्या? नहीं होंगे, है ना। तो अच्छा, एक बात और समझ लेंगे हम लोग कि सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते। सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते। मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं आपस में, आपने ए बी सी डी रिएक्टेंट्स लिए हैं, दे विल कोलाइड विद ईच अदर, बट क्या सारे आपके जितने भी कोलिजन्स होंगे इफेक्टिव होंगे? बताओ, सारे कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे? क्यों नहीं इफेक्टिव होंगे सारे कोलिजन्स भाई? सारे कोलिजन्स इफेक्टिव क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे, करने के बाद कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म करें तब इफेक्टिव होंगे, अगर नहीं फॉर्म करें तो। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि हमारे ये दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर दिख रहा है अभी आप लोग को, ये आपका एक आपका रिएक्शन से ए, ये आपका दूसरा रिएक्शन से बी, है ना। आपको क्या प्रोडक्ट क्या बनाना है? आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है? ए बी बनाना है ना। ये रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है, दोनों आपस में जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? ए बी बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये दोनों पास पास आए, ठीक है, इन्होंने आपस में कोलिजन किया और ऐसे कोलिजन किया और ये वापस से कोलाइड करा और वापस से क्या बना लिया? ए बी। तो ये इफेक्टिव कोलिजन है क्या? नहीं है। और ये अनफेवरेबल कोलिजन है। ठीक है, अनफेवरेबल कोलिजन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ इसका एक का ए और एक का बी आपस में कोलाइड कर रहा है, दोनों के ए बी कोलाइड नहीं कर रहे हैं। जबकि इस केस में आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है,
इसका ए इसका बी, इसका ए इसका बी, ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं। जब दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो ये आपका क्या होगा, फेवरेबल कोलिजन होगा, या कह सकते हैं इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो इससे क्या मिलेगा, ये भी हमारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखो वही बात होती है कि जैसे हम लोग कोई भी काम करने चलते हैं, हम लोग बहुत एफर्ट्स करते हैं, तो सारे एफर्ट्स जो होते हैं, जितने भी हमने एफर्ट्स इसमें डाले हैं, वो सारे एफर्ट्स इफेक्टिव नहीं होते ना। कुछ इफेक्ट्स हमारे जो कुछ एफर्ट्स होते हैं वो बेकार चले जाते हैं कि हम भी कोशिश तो करी थी मगर हमारा जो काम होना था वो नहीं हुआ, है ना। तो इन द सेम वे कि जब हमारे मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर, है ना, एंड दे विल कोलाइड टुगेदर, कुछ तो हमारे कोलिजन्स कैसे होंगे, इफेक्टिव होंगे, कुछ कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होंगे। जब कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होंगे तो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये बात हमारी कोलिजन थ्योरी कहती है कि सबसे पहली बात तो कहती है कि जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना अच्छा है, रिएक्शन करेगा उतना अच्छा होगा। दूसरी बात कहती है कि कोलिजन तो हो गए, ठीक है, तो उसमें से इफेक्टिव कोलिजन कितने हैं ये भी देखने वाली बात है। ठीक है, when the concentration of any reactant is increased, the number of collisions per unit time increases because of presence of greater number of particles per unit volume. The increasing number of collisions implies a greater reaction rate. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Clear all of you? Yes, ma'am. जितना ज्यादा concentration होगा, concentration of any reactant will increase, the number of collisions per unit time increases. तो ये बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। दूसरा इनका लॉ क्या कहता है, the fraction of the collisions which bring about chemical change or reaction, है ना, ये पॉइंट हमारा बिफोर द रिएक्टेंट्स particles react, they must collide with one another. However, only a small fraction of the total number of collisions is effective in bringing about chemical change. This is very important. Huh? Only a small fraction of the total number of collisions is effective in bringing about chemical reactions. सारे collisions effective नहीं होते। अब बात आती है कि हम effective collision कैसे बना सकते हैं, कैसे हमारे collisions effective हों। तो for a collision to be effective, it is necessary that the colliding molecules must possess a certain minimum amount of energy called threshold energy. This is very very important point for the collision theory. क्या बात बताई कि जो molecules आपस में collide कर रहे हैं, they must possess a certain minimum amount of energy called threshold energy. थ्रेशोल्ड एनर्जी इनके पास होनी चाहिए जो कोलाइड कर रहे हैं, मिनिमम एनर्जी। उससे कम एनर्जी अगर है तो वो कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होंगे। बहुत ही कम एनर्जी है तो जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, उनके लिए एनर्जी नहीं है। ज्यादा एनर्जी मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी उसके साथ भी क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और हमारे इफेक्टिव कोलिजन्स हमें मिलेंगे। The colliding molecules must be properly oriented at moment of collision. दूसरा पॉइंट कहता है the colliding molecules must be properly oriented at the moment of collision. जैसे इसी आपने डायग्राम में देखा यहाँ पर, है ना, ये ऐसे ओरिएंटेड थे तो क्या हो रहा, ये अनफेवरेबल कोलिजन है, और यहाँ पर क्या है, ये ऐसे ओरिएंटेड है तो दिस इज द फेवरेबल कोलिजन। तो दो फैक्टर आते हैं इसमें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी and the orientation of the molecule. Threshold energy होनी चाहिए, minimum energy, and colliding molecules must be properly oriented at moment of collision. Therefore, rate of reaction किस पर डिपेंड करेगा, F into P. फिर F क्या है, F क्या है, fraction of molecules. Fraction of molecules having energy equal to or more than threshold energy. आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स थे, 10 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है। तो हमारा जो रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करेगा, उन 5 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा, उन 10 मॉलिक्यूल्स पर नहीं करेगा। और आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, होने दीजिए, इससे क्या मतलब हमें तो मतलब है जिन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होना चाहिए, कि थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर होगी तभी हमारा काम बनेगा। ठीक,
Getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then next is P. What is P? What is P? Oriented molecules. This is the number of properly oriented molecules. Number of properly oriented molecules per unit volume. कितने आपके molecules oriented हैं? अगर आपके इधर उधर हैं उससे भी मतलब नहीं है. तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे ये देखो केमिस्ट्री बच्चों हम ही लोगों से ही रिलेटेड है, हमारी ही लाइफ से रिलेटेड है. अभी मैंने उस दिन आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे हमारे कॉलेज में कोई प्रोग्राम होने जा रहा, फंक्शन होने जा रहा था, तो क्या हमारा जो प्रोग्राम का जो फंक्शन है वो किन दो चीजों पर डिपेंड करेगा. उन बच्चों जो, अगर आपके कॉलेज के बच्चों का फंक्शन हो रहा है तो स्टूडेंट्स पर डिपेंड करेगा कि उनकी एनर्जी इतनी हो कि वो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके. रिएक्शन मतलब कि आपके प्रोग्राम को अच्छे से पार्टिसिपेट वहाँ पर कर सके, है ना. अगर वो बच्चे बिल्कुल क्या लेथार्जिक हैं, डल हैं, डाउन है, तो क्या होगा, वो नहीं कर पाएंगे प्रोग्राम, है ना. तो हमारा इस पर डिपेंड करेगा उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मीन्स fraction of molecules having energy equal to or more than the threshold energy. P क्या है? प्रॉपरली ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे बच्चे जो हाँ वाकई में पंक्चुअल हो, है ना, टाइम से काम कर रहे हो, उनका बिल्कुल क्या कहना चाहिए, किसी भी चीज को डिसओबे नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली काम कर रहे हैं ना, उनका ओरिएंटेशन एकदम अच्छा है. तो जैसे हमारे कॉलेज का फंक्शन करने के लिए दो चीजें डिपेंड करती है. सेम वे फॉर द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स ओनली, दैट इज F and P. F is fraction of molecules having energy equal to or more than the threshold energy, and the P is the number of properly oriented molecules per unit volume. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Now come to the activation energy. Now what is activation energy? अब बात आती है activation energy. पहले threshold energy हम समझ गए. अब activation energy क्या हो गई? अब the extra amount of energy which the molecule of the reactants have to absorb so that their energy becomes equal to the threshold energy is called the activation energy. क्या समझ में आया इससे? मुझे कौन बताएगा? The extra amount of energy which the molecule of the reactants have to absorb so that their energy becomes equal to the threshold energy is called the activation energy. बताओ जल्दी से, what is activation energy? मुझे समझाओ जरा यहाँ पर. बताइए. यहाँ पर एक ग्राफ भी आता है, इस ग्राफ से ज्यादा समझ में आता है. ये ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को? ये ग्राफ बच्चे दिख रहा है? यस मैम. ये इधर क्या एनर्जी है और इस एक्सिस पर क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. ठीक है, ये हमारा वो प्रोडक्ट है, उसकी एनर्जी है EP. EP denotes the energy of the product, and ER is the energy of the reactants, and ET is the energy of threshold energy, right? तो कोई रिएक्टेंट है उसके पास अपनी इतनी एनर्जी है, ठीक है. और जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में रिएक्शन देंगे, तो क्या होगा, इनकी एनर्जी पहले क्या होगी, इंक्रीज होगी और कहाँ तक, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने के लिए कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, है ना. थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने के लिए जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी. अभी ऐसा तो होता नहीं कि हमने दो रिएक्टेंट ली और रिएक्शन होना शुरू हो गया, है ना. आप या तो क्या करते हो, उसको शेक करते हो, क्या आप क्या करते हो, उसको हीट करते हो, आप तो एनर्जी प्रोवाइड कराते हो ना. ऐसा तो नहीं कि बस दो चीजें आपकी मिलाकर रिएक्शन शुरू हो गया. आप ना कुछ तो मिक्सिंग करोगे, शेक करोगे, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, एनर्जी इंक्रीज होगी. तो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या, वो मिनिमम एनर्जी, से नीचे अगर होगा तो आपका रिएक्शन ही नहीं होगा. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने के लिए रिएक्टेंट ने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी.
दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब देख रहे हो रिएक्टेंट है, उनकी एनर्जी बड़ी 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 थ्रेशोल्ड तक गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, इनके कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन्स हो जाएंगे। इससे पहले जो कोलिजन्स होंगे इफेक्टिव नहीं होंगे, यहाँ पे जो कोलिजन्स होंगे इफेक्टिव होंगे। और अब क्या होगा, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। तो अब क्या होगा, एनर्जी यहाँ पर फिर से धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों रिलीज होगी, क्यों एनर्जी कम होगी? क्योंकि एक बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है बच्चों, कि एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ यू आर गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट मींस अब उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से तो कम होनी चाहिए ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी तक ही अगर बना रहेगा तो फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा कहाँ, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो लगातार तो अनस्टेबल ही रहेगा। If you want to get the stability, you have to minimize the energy, you have to lower down the energy। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसलिए आप ग्राफ देख रहे हो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है ग्राफ यहीं पर खत्म हो जाए, मगर हो सकता है ग्राफ ये नीचे तक आए। अगर ये नीचे तक आ रहा है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे आके बना, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्शन की एनर्जी से भी लो है। यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्शन की एनर्जी से लो है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्शन की एनर्जी से लो है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? व्हाट इज द एंडोथर्मिक प्रोडक्ट एनर्जी, हम जहाँ पे प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की एनर्जी एनर्जी ज्यादा ज्यादा। रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। अभी अगर इसके ग्राफ पे अगर आप देखो, यहाँ तक जैसे जा रहा था मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है ना, कर्सर ये अगर मैं यहाँ पर छोड़ देती ऐसे, यहाँ पर ग्राफ खत्म हो जाता तो क्या हो जाता, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक तो बोलते हैं ये देखो यहाँ पर आ गया, दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोडक्ट। So now what is the activation energy and what is the threshold energy? Threshold energy is the minimum energy, है ना। इससे क्या होगा, वो मिनिमम एनर्जी जहाँ से इफेक्टिव पोजीशंस आपके स्टार्ट होंगे उसको कहते हैं आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने के लिए रिएक्टेंट ने जितनी एनर्जी का एब्सॉर्ब किया, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके बाद ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। और ये दिस इज डेल्टा एच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एच? Enthalpy of reaction. डेल्टा इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा एच ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एच इसके बराबर हो जाएगा। दिस इज द डेल्टा एच। तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? E is equal to ET minus ER. What is ET? ET is the threshold energy. ER क्या है, रिएक्शन की एनर्जी, है ना। तो EA is equal to ET minus ER. डेल्टा H is equal to, यहाँ पर क्या है, EP minus ER, EP minus ER, डेल्टा H। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। EP minus ER करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव आएगी ना, ठीक है। यहाँ पर EP की वैल्यू क्या है, EP की वैल्यू यहाँ पर कम है, ER की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी एंडोथर्मिक के लिए, आपकी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। स्पेलिंग सही कर लेना है आप। EP is greater than ER, and ER is greater than EP, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वापस आओ, अब ये डेफिनेशन समझो, मुझे बताओ समझ में आई। The extra amount of energy which the molecule of the reactants have to absorb so that their energy becomes equal to the threshold energy is called the activation energy। अभी देखो समझ में आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी एक्चुअली प्रोसेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। कुछ ना कुछ एनर्जी होगी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, जहाँ थ्रेशोल्ड के बराबर तो नहीं होगी, तो थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए तो हमें देनी पड़ेगी एनर्जी। The activated state or activation complex is a transition or short-lived state
when the old bonds are breaking and the new bonds are forming. अब यहाँ पर एक बात और समझेंगे हम लोग. देखो ये ER से ET पे जाना है हमको, इसका मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना. यहाँ पर जाकर के एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? हैव यू हर्ड दिस नेम? Activated complex. Have you heard this name before? No, ma'am. maybe complex compound. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. हाँ, यहाँ पर तो क्या हुआ? क्योंकि रिएक्टेंट से एकदम से तो प्रोडक्ट बन नहीं जाएगा. रिएक्टेंट सपोज करो मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, A और B है. ठीक है, उससे हमको C प्रोडक्ट बनाना है. A प्लस B विल गिव यू C. तो क्या होगा, या A प्लस बी मतलब एग्जाम्पल लो, ऐसे ले लो AB प्लस BC. मैं इसमें दिखाती हूँ. यहाँ पे बनाओ, ठीक है, मैं ड्रॉ करती हूँ. देखो हमारे पास ये दो रिएक्टेंट्स हैं, A2 और B2. ये दो रिएक्टेंट्स हैं. ठीक है, ये एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है. इससे हमको बनाना क्या प्रोडक्ट? AB बनना है, AB बनना है. ठीक है, ये प्रोडक्ट बनना है. तो ये देखो हमारा ये A2 है, ये B2 है. ठीक है, अब ये जब रिएक्शन शुरू हुआ तो यहाँ पर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना. अब बना जब इसको हमने एक्टिवेशन एनर्जी दी, एक्टिवेशन एनर्जी दी और थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचा दिया, तब इतने ज्यादा एनर्जाइज हो गए हैं. अब क्या होगा कि जब हमको क्या बनाना है? ए बी बनाना है. तो ए बी बनाने के लिए क्या होगा? ए के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, तभी तो ये बी के साथ बॉन्ड बनाएगा. तो अभी क्या है कि ए के बीच का बॉन्ड ठीक से टूटा भी नहीं है और बी भी ने आकर के ए के साथ बॉन्ड बनाना भी शुरू कर दिया है. ठीक है, तो क्या हो रहा अभी कि पुराना बॉन्ड ये टूटना है और ये नया बॉन्ड ये बनना है. ये न्यू बॉन्ड है. दिस इज द न्यू बॉन्ड एंड दिस इज द ओल्ड बॉन्ड. तो ये ओल्ड बॉन्ड देखो डॉटेड डॉटेड क्या दिखा रहा है कि अभी ये बॉन्ड टूटना शुरू हुआ है, पूरा नहीं टूटा है. और बी ने आकर के इसे बॉन्ड बनाना भी शुरू कर दिया. ना सेम वे इनके बीच का बॉन्ड टूटना है, ब्रेक होना है, और अभी बॉन्ड ब्रेक भी नहीं हुआ है और इधर से एक बॉन्ड बनना भी शुरू हो गया. दिस इज द इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. इसमें क्या हो रहा है कि नया बॉन्ड अभी ठीक से बना भी नहीं है और पुराना बॉन्ड अभी ठीक से टूटा भी नहीं है. ऑपोजिट में आप कह सकते हो कि न्यू बॉन्ड भी बनना शुरू हो रहा है और ओल्ड बॉन्ड अभी धीरे धीरे टूटना शुरू हो रहा है. तो दिस इज द इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स in which A2 and B2 molecules are losing and new loose bonds between A and B are formed. And this is the A2 product. This is the activated complex and this is the intermediate state. Why this is the intermediate state? क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत हाई है. क्यों हाई है? क्योंकि ये कहाँ पर है? थ्रेशोल्ड एनर्जी पर बन रही है. इसकी एनर्जी बहुत हाई है और बहुत हाई एनर्जी कभी भी स्टेबल नहीं होती है. तो वांट टू गेट द स्टेबिलिटी यू हैव टू लो डाउन द एनर्जी एंड अब देखो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन. ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारी चीजें कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? ओके, this is the activated complex and this is the significance of activation energy. जो भी मैंने बता दिया. The activated state or activated complex is a transition or short-lived time, short-lived state when the old bonds are breaking and the new bonds are forming. है ना, नए bonds बन रहे होते हैं, पुराने bonds टूट रहे होते हैं. This is the intermediate state or you can see the threshold state, activated state. According to the activation energy concept, the energy equal to EA activation energy must be absorbed by the reactants to form an activated complex. ना, वो reactants हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, then they must be
the energy should be absorbed by the reactants. अगर एनर्जी absorb नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा. So there must be energy must be absorbed by the reactants to form an activated complex. The activated complex then further decomposed to give the products and the energy equal to Et minus Er or Ea dash is released. अब क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी. जब हमको क्या बनाना, वापस से क्या बनाना है, हमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी. जितनी एब्जॉर्ब हुई थी, हो सकता है उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, सकता है उससे कम एनर्जी रिलीज हो. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए कंडीशन. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. अच्छा, the change in energy delta H for the reaction is given by the relation delta H is equal to EP minus ER. ये हम लोगों ने पढ़ लिया अभी, है ना. EP क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी, और R क्या है, रिएक्शन की एनर्जी, है ना. टू कंडीशन अराइजेस. टू कंडीशन कौन कौन सी है, हो सकता है कि रिएक्शन की एनर्जी ज्यादा हो सकता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो. If delta H is negative, the energy is released. एनर्जी रिलीज होगी, है ना. दैट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो तो मैंने बताया था. दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब एनर्जी रिलीज हो रही है कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से भी कम है, लेस देन है. ठीक है. दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है. यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है. ठीक है. इसलिए यहाँ पर आपको चीजें बताई गई है. डेल्टा एच कब नेगेटिव है, कब पॉजिटिव है. ठीक. कोई डाउट है? नो मैम. No, ma'am. समझ में आ गई चीजें? नाउ कम टू द आरएनएस इक्वेशन. आरएनएस इक्वेशन है ये. इसको अभी आज का काम आपका तो ये है कि ये जो इक्वेशन है इसको भी आप याद एकदम कर लें. कैसे आएगी, क्या करेंगे हम लोग, इसके बारे में भी यहाँ पर पूरा देखिए है. और आज आप लोगों को मैं आपके नोट्स भी इसके भी सेंड भी कर दूंगी. ये नहीं मैंने भेजा ना, काइनेटिक पार्ट 3 आपको मैंने सेंड नहीं किया है ना अभी. No, ma'am. पार्ट 2 तक तो सेंड हो गया आपको. पार्ट 2 तक तो आप तो पढ़ ही लेना. ठीक है. अब E K is equal to A E minus E A upon RT. This is very very important equation for the numerical. न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी है. यहाँ पर K क्या है, रेट कांस्टेंट है. ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है. A is the frequency of factor. R is the gas constant. T is the temperature in Kelvin. And E base of natural logarithm. Yeah. Thus E minus E upon RT represents the fraction of molecules having energies equal to or more than the energy of activation. बात समझ में है कि ये किसके बराबर है, ये क्या बता रहा है कि represents the fraction of molecule having energies equal to or more than the energy of activation. तो वही, क्योंकि क्या करेंगे, रिएक्शन पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी तो करेंगे ही नहीं ना. इसके इसके बराबर है. अभी क्या करना है, इसको लॉग ले लो. कॉपी पेन है सबके पास? यस मैम. Yes, ma'am. चलो उसका ले लो. टेक द लॉगरिथम. वी गेट ln k is equal to ln a minus e upon rt. करके देखो जल्दी से, आ रहा है कि नहीं आ रहा सबका? ये आपका आ जाएगा ln k is equal to ln a minus e upon rt. Thus, when ln k is plotted against 1 upon t, a straight line is obtained with an intercept equal to ln a and the slope equal to minus v upon r. ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना. If K1 and K2 are the rate constants of a reaction at temperature T1 and T2 respectively, then from equation 2 we get. अब इससे क्या करेंगे हम लोग, अगर हमने मान लें कि हमने 2 टेम्परेचर ले लिए हैं, तब क्या हो जाएगा,
ln k1 is equal to ln a minus e upon rt1 और ln k2 is equal to ln a minus e upon rt2. ये two equations बन गई. two equations कैसे बन गई? If you are taking two different temperatures, on subtracting third from fourth, third में से fourth को minus कर दीजिए, then you will get this ln k2 minus ln k1 minus ea upon r 1 upon t2 minus 1 upon t1. ये अभी आप लोग करिएगा. अभी मैं जल्दी इससे बता दूं, टाइम ओवर हो गया हमारे पास. कल हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे. एंड ln k2 minus ln k1 है, तुम बोल सकते हैं ना ln k2 upon k1 minus e upon r t1 minus t2 upon t1 t2. इसको लिख लिया हमने ऐसे. log k2 upon k1 is equal to क्या हो गया? ea upon 2.303 r t2 minus t1 t1 t2. और r की वैल्यू हमें मालूम है. we can put this value in this equation. Then we will get ea is equal to 4.576 t1 t2 log k2 minus log k1 upon t2 minus t1. This is the calories per mole. ये इक्वेशन और ये जो आ रही है इक्वेशन थी, ये सब आपकी इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए. न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपका. इसमें डेरिवेशन तो नहीं पूछ सकता शायद, मतलब हाँ ये पूछ सकते हैं आपका क्या इसका न्यूमेरिकल्स कैसे. इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे फिर से आगे डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ये अभी कर लो. करना भी मैम हो गया. हो गया है, कर रहे हैं मैम. कर रहे हो तो करते चलो. कर लो, इसको भी खत्म नहीं करना. अच्छी बात है. ln k is equal to ln a minus e upon rt. इसको हम लोगों ने क्या कर लिया था? दो टेम्परेचर्स मान लिए थे t1 t2. बना लो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन बना लो इसकी. मैम हो गया. हो गया. फोर्थ इक्वेशन बना लो. डन मैम. चलिए, वेरी गुड. एंड ऑन हो गया मैम. वेरी वेरी गुड. ऑन सब्सट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ वी क्या गेट. मैम? ये आ गया सबका? यस मैम. यस मैम हो यस गया. मैम. बहुत अच्छी बात है. इसको क्या करा हम लोगों ने? लॉग की प्रॉपर्टीज पे लगा दी. k2 upon k1 ये आ गया. फिर log k2 upon k1 is equal to, अब तो log में चेंज कर दिया तो क्या कर दिया? e upon 2.303 r t2 minus t1 upon t1 t2. r की वैल्यू क्या होती है? we can put this value of r in this equation and we will multiply with 2.303 and we will get 4.576 t1 t2 log k2 minus log k1 upon t2 minus t1. सबने कर लिया? सबका आ गया? यस मैम. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका नहीं आया? सबने आ गया सबका वैल्यू? स्नेह कुमार, आपका आया आंसर इसका? ये फॉर्मूला आया, डिराइव किया फिर? स्नेह कुमार. यस मैम. प्रिंस गोस्वामी. यस मैम हो गया. ओके. हो गया मैम. मोहम्मद सोहेल. यस मैम हो गया. हम देखो राहुल गुप्ता ने लेफ्ट करके. चलो प्रतिभा कुमारी. यस मैम. प्रतिभा कुमारी, टेक द स्क्रीनशॉट और टेक अटेंडेंस, है ना? ओके मैम. and send it. There are 49 students right now. ओके. Okay, students, have a nice day. God bless you. मैम थैंक यू मैम. थैंक यू थैंक यू मैम. मैम.